So 10th students, you are going to study water resources in geography. This is lesson number 3, water resources. In the syllabus of class 10th, mainly in geography, you are studying about different types of resources. And before this, you have studied about soil resource, forest resource, and now we are going to study about water resource. Water resource is in your syllabus. It will not be asked in the final exam only, right? But it will be asked. Questions will be given in periodic test, and the map work will be also asked in during final exam also, right? बात समझ गए ना कि मैप वर्क तो फाइनल एग्जाम में भी रहेगा, बाकी सारी चीजें वीकली टेस्ट में और पीरियोडिक टेस्ट में भी रहेगा. तो इस लेसन को अच्छे से पढ़ो अपने नॉलेज के लिए, है ना, और इसकी तैयारी कर लो कि कहीं से कोई क्वेश्चन आए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Why Earth is known as a watery planet? Earth is a watery planet. Do you know this? Because 3/4 of the Earth's surface is covered with water. That's why it is known as watery planet. And it appears blue in the space. Yes, when you will see the Earth from the space, it appears blue due to the presence of water. 3/4 of the Earth's surface is covered with water, so it is known as blue planet or watery planet. Suppose you get a question, why the Earth is known as a blue planet? Your answer will be 3/4 of the Earth is covered with water. And it appears blue in color, so it is known as watery planet. ठीक है? ये क्वेश्चन लिखोगे क्या? तो लिख लो. Why Earth is a blue planet? अपने आंसर लिख लेना अभी जो बताए. Okay, ma'am. 3/4 of the part of cover with the Earth is covered with water, so it appears blue in color. And so it is known as watery planet. 1 minute. Blue planet. हो गया मैम. चलो आगे बढ़े. ठीक है, यहाँ पे ना कुछ डेटाज ये सब दिए हुए हैं रिलेटेड टू वाटर कि अर्थ सरफेस पे वाटर की इतनी स्कार्सिटी क्यों है. When the earth is covered with water in its maximum part, then why there is a scarcity of water? Because water will be the water which we use is known as fresh water, and the sea water is known as salty water, and fresh water is in very scarce. The availability of fresh water is in very scarce. Very little fresh water is available. You will see in the next column how the water is very scarce. है ना, वाटर की क्वांटिटी कितनी कम है जो हमारे यूज के लायक है. सॉल्टी वाटर तो बहुत है, तो उसको तो यूज नहीं करते हम डायरेक्टली. कुकिंग, ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, किसी काम में नहीं लाते हैं उसको, सॉल्ट वाटर को. तो इसलिए वाटर की स्कार्सिटी है. ठीक है ना, सभी लोग देख रहे हो ना, अरसलान, आर्यमान, आर्यन कुमार, अस्मिता, अनिरुद्ध. ठीक है, आगे देखते हैं, है ना, और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस देते जाएंगे. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखना. The fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. तो अभी हम किसकी बात करनी है? हमको फ्रेश वाटर की बात करनी है. सी वाटर तो इतना है, 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as oceans. ठीक है ना, ओशन वाटर में टोटल वाटर का कितना है? 96.5%. तो बच गया कितना? ओनली 2.5% फ्रेश वाटर, और बाकी कुछ सस्पेंडेड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, है ना. तो 96.5% वाटर तो सॉल्टी वाटर है. तो बहुत कम वाटर बच गया, ओनली 2.5% फ्रेश वाटर बच गया जो हम यूज करते हैं. और वो 2.5% में से भी बहुत सारा तो आइस शीट के फॉर्म में है, तो उसमें का भी कम कर दो, उसको भी और कम कर दो, है ना. अब यहाँ देखो कि फ्रेश वाटर जो है वो मेनली किस किस फॉर्म में अवेलेबल है. एक है अर्थ सरफेस के ऊपर, है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर सरफेस रन ऑफ है, या फिर सरफेस के ऊपर जो दिखाई देने वाले वाटर बॉडीज हैं जैसे रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, ये सब हो गया.
तो और सरफेस रन ऑफ मतलब सरफेस के ऊपर चलने वाली स्ट्रीम्स वो, और बाकी किस फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। तो फ्रेश वाटर जो है वो मेनली सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में पाया जाता है। और ये रिन्यू और रिचार्ज कैसे होता है, थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है ना, तुम लोग तो बचपन से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते आए हो, पढ़े हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अनिरुद्ध बताओ तो व्हाट इज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? मैं बताऊं? और कोई, एक और कोई बच्चा बताओ, अनुराग? What is hydrological cycle? Explain the three states of water. Aryan Kumar, Amrit Gautam, any one of you speak. Manya, Pranav Kumar, Kriti Raj, what is hydrological cycle? मैं बताता हूँ. हाँ बताओ. 4 stages are evaporation, condensation, precipitation. हाँ, so due to high temperature, the water evaporates. The water. हाँ, Yes, ma'am. The water cycle is also known as hydrogen cycle. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट में Yes, तुम क्या बताओगे? हाँ, Ma'am, hydrological. Ma'am, it is. Ma'am, hydrogen cycle is the those. मतलब hydrological cycle is also known as water cycle. Describe continuous movement of water as it make a circuit from the ocean to the atmosphere of the earth is called hydrological cycle. हाँ, थोड़ा आराम से बोलो इसको, है ना? कौन है मान्या, एक बार और बोलो तो। मैम हम हरिराम बोल रहे हैं। मैम हाँ, हरिराम बोल रहे हैं। हरिराम, तो आंसर नहीं कंप्लीट हुआ, इसलिए दूसरे बच्चे को चांस दो। मेहुल, मान्या, कोई भी बोलो जल्दी। Water cycle is also called hydrological cycle. And what is the process? That involves the continuous circulation of water in the Earth atmosphere system. Through the process of evaporation, Hydrological cycle. condensation, Evaporation, condensation, and precipitation. And precipitation. ये तीनों बात आपको इंक्लूड करना है। Evaporation, condensation, and precipitation. Evaporation means converting of water into vapor due to the high temperature. And when the water vapor reaches to higher altitude of the atmosphere, condensation starts and there is formation of clouds. When the clouds become heavier, it starts coming down again to the Earth's surface. This is known as precipitation. So evaporation, condensation, and precipitation are the three processes involved in hydrological cycle. It happens due to the change in the temperature. तो इसलिए वाटर क्या है, हमेशा रिसाइकल होते रहता है और इसलिए ऑलवेज अवेलेबल है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि हाउ वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, then you have to explain this hydrological cycle. Okay, all water, yes, all water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? है ना, अभी हम लोग ये बात किए. And why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? This is 2021 and this time is not very far away. 2025. So when the Earth is a watery planet, then why there is scarcity of water? Then what is your answer? Write this question. When the Earth is a watery planet,
comma, how is it said that countries and regions comma, how is it said that countries and regions around the globe will suffer from water scarcity? आवाज नहीं करना. क्या आंसर लिखोगे बताओ. लिखो, लिखना शुरू करो तो हम लिखा दें ये आंसर. Earth is a watery planet because 3/4 of its surface. Earth is a watery planet because 3/4 of its surface is covered with water. First up, in spite of this fact, Earth suffers with water scarcity because people suffers with water scarcity because only 2.5% water is available as fresh water for use. नहीं, पहले इतना लिखो, only 2.5% of the water is available as fresh water. Full stop. And it's 70% is stored in the form of ice sheets and glaciers. And it's 70% is stored, stored in the form of ice sheets and glaciers. So less than 1% of the fresh water is available for our use. So less than 1% of the fresh water is available for our use. Who will repeat? लिखो और repeat करो. Ma'am, can I? Yes. Earth is a watery planet because its 3/4 surface is covered with water. In spite of this fact, Earth suffers with scarcity of countries around the globe suffers with scarcity of water because only 2.5% of water available is fresh water and 70% is stored in the form of ice sheets and glaciers. So Yes. the less than 1% of water is available as fresh water. हाँ, so there is acute scarcity of water. ठीक है ना. तो यहाँ देख रहे हो ना ये डेटा, ये 2.5% तो फ्रेश वाटर है. ये 96.5% को तो बिल्कुल छोड़ दो, ये ओशन वाटर है ना. ये वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है, लेकिन हमारे डायरेक्ट यूज में नहीं है. और 2.5% ही है फ्रेश वाटर जिसको कि हम यूज कर सकते हैं. और इसमें भी हम पूरा नहीं यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इस 2.5% का 70% आइस शीट के फॉर्म में जमा है ग्लोब, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और हायर अल्टीट्यूड एरियाज में. जैसे हिमालय के 6000 मीटर से ऊपर वाले एरियाज, फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल के अराउंड, आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में और एंटार्क्टिक सर्कल के साउथ में जितने एरियाज हैं वो फ्रोजन है, परमानेंट आइस शीट है. तो 2.5% का 70% तो ऐसे निकल गया, आइस शीट के फॉर्म में निकल गया. तो लेस देन 1% बच जाता है तुम्हारा जो हम लोग यूज करते हैं वाटर को, वो. तो इसलिए वाटर की स्कार्सिटी. समझ गया ना. तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई देयर इज acute scarcity of water for the people or on the earth in spite of the fact that earth is a blue planet or watery planet. ठीक है ना. तो इस तरह से डेटा देके इस आंसर को लिखोगे. हो गया ये आंसर सबका. अभी किसने रीडिंग किया था? Ma'am, Harsh. हर्ष, वेरी गुड. और अभिषेक, तुमने लिखा आंसर? अनिरुद्ध? Ma'am,
Can I? यस, एक आदमी और रीडिंग करो. Yes, ma'am. Ma'am, Earth is a water planet because 3/4 of its surface with water. Is in spite of this fact, Earth suffer Earth suffer people of the scarcity of water because only 2.5% water is fresh water, and it's 70% is stored in the form of ice glacier. Less than 1% of all of fresh water is available for this earth. ओके, वेरी गुड. अमृत गौतम, अच्छे से लिखा आंसर. ठीक है, और वही सारे डेटा यहाँ देखो कि सम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. देख रहे हो ना, सम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. So what is this? 96.5% is available in the oceans and seas, which is salty water. ठीक है, salty water कितना है? 96.5%. और फ्रेश वाटर कितना है? 2.5%. ठीक है, अब इस 2.5% का 70% जो है आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में है, जो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं. ठीक है ना, तो बहुत कम बच गया. और 30% से थोड़ा कम किस फॉर्म में है? अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में. तो अंडरग्राउंड वाटर हम लोग यूज करते हैं बहुत जगह, बोरिंग करके, और क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं और यूज करते हैं. मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, एग्रीकल्चरल एरियाज में ये बहुत प्रैक्टिस में है टू ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर बिकॉज सरफेस वाटर इज नॉट सफिशिएंट. मैम, बोलो. मैम मेरे बुक में ये वाटर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स ये वाला हाँ. टॉपिक दिया ही नहीं मैम. नहीं है? नहीं मैम. अच्छा, न्यू यस बुक मैम, नहीं दिया. तुम्हारा नया बुक है? यस नया मैम. अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम तो आंसर में लिख ही लिए. अभी जो आंसर लिखा है ना, उसमें तो उतना डेटा मिल ही गया तुमको. ठीक है, अब देखो इंडिया का रैंक क्या है रिगार्डिंग प्रेसिपिटेशन. ओके, जितना अर्थ सरफेस पे, इंडिया के अर्थ पे सरफेस पे कितना रेनफॉल पहुंचता है, स्नोफॉल या रेनफॉल सब टोटल मिला के कितना प्रेसिपिटेशन इंडिया को मिलता है, तो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 4% मिलता है. ठीक है ना, तो 4% मिलने के साथ ही इंडिया का रैंक कितना हो गया? 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम. 133 है. यहाँ का तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया का, तो पर पर्सन वाटर की अवेलेबिलिटी निकालते हैं, तो उस हिसाब से हम किस रैंक पे पहुंच गए? 133 रैंक इन द वर्ल्ड. India have got 133 rank in the world regarding availability of water per person per annum. एक व्यक्ति को एक साल के अंदर कितना पानी मिलता है, इस हिसाब से इंडिया का रैंक क्या हो गया? 133 हो गया वर्ल्ड में. और पूरे वर्ल्ड के टोटल प्रेसिपिटेशन का 4% इंडिया को मिलता है. The total renewable water resource of India are estimated about 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम. चलो, ये डेटा नहीं है न्यू बुक में, इसका मतलब डेटा रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, और एक प्रेडिक्शन है कि बाय 2025 क्या होगा? लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया विल जॉइन कंट्रीज और रीजन्स हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी. ठीक है, अभी से देखा जा रहा है कि बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, जैसे गुरुग्राम है या दिल्ली है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ की वाटर स्कार्सिटी अभी से पता चल रहा है, अंदाजा मिल रहा है वाटर स्कार्सिटी होने जा रही है. कैसे पता चलता है कि हर साल वाटर टेबल और नीचे चला जाता है, और देयर इज लोअरिंग डाउन ऑफ वाटर टेबल एवरी ईयर. तो आज ये पैराग्राफ हम लोग कर लेते हैं, बस आज इतना तक. ठीक है ना, तो ये देखो, वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. जिस चीज की कमी है, वाटर अगर स्कार्सिटी में है, कमी में है, तो हमको अभी से क्या करना होगा? उसके लिए बहुत सारे कंजर्वेशन प्लान बनाने चाहिए कि कैसे हम कम से कम वाटर यूज करें
और वाटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, वाटर को वेस्ट नहीं करें, क्योंकि फ्रेश वाटर 1% से भी कम है जो हमारे इस्तेमाल का है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट प्लान लेकर के चलना है फ्यूचर के लिए, नहीं तो वाटर तो बेसिक चीज है, अगर वो कमी हो जाएगी तो फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ देखें, given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone, ठीक है ना। जब भी वाटर स्कार्सिटी की बात होती है तो पहले तो दिमाग में ये आता है कि जब वाटरी प्लैनेट है अर्थ तो स्कार्सिटी क्यों, तो इसका तो जवाब हम लोग लिख लिए पहले ही। अब देखना है कि जब वाटर स्कार्सिटी की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि वो जैसे वेस्टर्न राजस्थान है ये सब ड्राई हो सकता है, सब जगह तो ऐसा नहीं है ना। जैसे खास करके बिहार, बंगाल, ये जब ईस्टर्न स्टेट्स हैं इसमें पानी की उतनी कमी नहीं है ऐसा लगता है ना। लेकिन वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कमी हो सकती, लेकिन कमी हर जगह है ना, कमी हर जगह है। तुम देखना कि we instantly visualize the desert of Rajasthan and women balancing many matkas used for collecting and storing water and traveling long distance to get water. पिक्चर में भी दिया हुआ है ना, कि लोग पानी भरने के लिए दूर दूर जाते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है सब जगह। मैम महाराष्ट्र में भी मैम यही सेम प्रॉब्लम है। बहुत बहुत प्रॉब्लम है महाराष्ट्र का, जो खास करके जो ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है ना, वहाँ इतनी ज्यादा स्कार्सिटी है कि वहाँ टैंकर से वाटर सप्लाई करना पड़ता है ना। ट्रेन, टैंकर वाले ट्रेन भी चलाए जाते हैं पानी सप्लाई करने के लिए, इतनी कमी हो जाती है। True, the availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation. ठीक है ना। फ्यूचर में कहा भी जाता है कि पहले अब आने वाले समय में ना वाटर के लिए वार होगा रीजन्स और कंट्रीज के बीच में, है ना, इतनी स्कार्सिटी होगी। अब देखना है कि ये स्कार्सिटी है क्यों। तो एक पहला पॉइंट आता है स्पेस एंड टाइम, है ना, कि जो रेनफॉल होता है इंडिया में वो सिर्फ 4 महीने के लिए होता है ना। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो जून से बारिश शुरू हुई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही ना 4 मंथ है रेनी सीजन। तो इस समय पानी सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन वो भी हर एरिया में सफिशिएंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो देयर इज स्पेशल स्कैर्सिटी। स्पेशल मतलब जगह जगह कहीं एक्सेस बारिश हो जाती है और कहीं पानी बरसता ही नहीं। इसी को कहते हैं स्पेस और टाइम दोनों के हिसाब से देखें तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। स्पेस में ये लिख दोगे कि एवरी पार्ट ऑफ इंडिया डज नॉट रिसीव इक्वल रेनफॉल। तुम लोग 9th का क्लाइमेट पढ़े थे ना, कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़े थे कि कहीं हैवी रेनफॉल है तो कहीं मॉडरेट है और कहीं बिल्कुल स्कैर्सिटी है। फिर टाइम के बारे में ये लिखोगे कि ओनली 4 months आर सफिशिएंट फॉर रेनफॉल एंड द रेस्ट ऑफ द मंथ्स आर ड्राई, है ना। ऐसा देखा गया है, जैसे वो सब जगह है ना, मौसिनराम और क्या है, चेरापूंजी, जहाँ की बहुत बहुत रेनफॉल होता है, मतलब वर्ल्ड का रिकॉर्ड रेनफॉल वहां पर होता है। लेकिन वहां पर भी, हाँ, वहां पर भी जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है, ड्राई सीजन आ जाते हैं, लंबे ड्राई सीजन, तो वहां पर भी वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। इसलिए वहां भी लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके रखें, ठीक है ना। तो एक तो पहला रीजन हो गया स्कार्सिटी ड्यू टू द वेरिएशन इन स्पेस एंड टाइम। दूसरा क्या हो गया, सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। फिर क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये सब पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। लोग जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और एक्सेसिव यूज करते हैं, ये दोनों पॉइंट एक में रख सकते हो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सेसिव यूज। इसके चलते भी वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है ना। जैसे पंजाब हरियाणा में एक्सेस अंडरग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है एग्रीकल्चर के लिए। अब नतीजा ये हुआ है कि वो स्कार्सिटी में वो रीजन आ गया है।
फिर अगला पॉइंट क्या है, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप पे भी डिपेंड करता है कि किसको कितना पानी मिलता है ना। जो गरीब लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो मेन पार्ट में नहीं रहते हैं, मेन एरिया में नहीं रहते, बहुत दूर दूर रिमोट साइड में रहते हैं, उन सबको वाटर की स्कार्सिटी है। तो पुअर पीपल आर मोर प्रोन टू वाटर स्कार्सिटी। इसी को कहते हैं सोशल ग्रुप्स। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब है ना, ये ज्यादा फेस करते हैं वाटर स्कार्सिटी। तो फोर्थ पॉइंट में ये हो गया अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सीजनल एंड एनुअल स्कार्सिटी लिख सकते हो ऑफ वाटर। फिर क्या लिख सकते हो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। And unequal access to among different. हाँ, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग मेनी सोशल ग्रुप्स, है ना। और ये जो पॉइंट है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इसमें अर्बन लाइफ स्टाइल आता है। अर्बन लाइफ स्टाइल में ना बहुत एक्सेस वाटर यूज करते हैं लोग, और एक्सेसिव यूज में वो भी आता है कि जैसे इरिगेशन के लिए हम एक्सेस वाटर निकालते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतनी डेंस पॉपुलेशन है कि वहां भी बहुत एक्सेस वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको भी 2 पॉइंट में अलग अलग करके तुम अलग अलग एग्जांपल दे सकते हो। हाँ बोलो। मैम, अगर वाटर रिसाइकल हो रहा है हर टाइम, अगर मैम हम लोग यूज करते हैं फिर भी तो वो इवेपोरेट हो जा रहा है, तो मैम फिर हाँ। से रेन होगा, तो अमाउंट तो मैम चेंज नहीं हो रहा है, तो मैम स्कैर्सिटी क्यों हो जा रहा है? हाँ, स्कैर्सिटी देखो इसलिए हो रहा है ना कि पॉपुलेशन क्या है, एकदम ऑलवेज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, और जो लाइफ स्टाइल आदमी का होते जा रहा है ना, उसमें आदमी और एक्सेस वाटर भी यूज कर रहा है। तो वाटर का यूटिलाइजेशन तो बढ़ता चला जा रहा है ना। और क्या हो रहा है कि प्रेसिपिटेशन जो होता है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज अगर करते जाएं तो नहीं होगा वाटर स्कार्सिटी, है ना। जैसे सरफेस रन ऑफ से वाटर, बहुत फ्रेश वाटर इधर उधर बह के निकल जाता है, जो हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे उसका बहुत सारा इसी लेसन में मेथड मैम बताया। पॉन्ड्स बना के या फिर और भी बहुत जब पॉन्ड्स बना लोगे ना जगह जगह, पॉन्ड्स की तो पॉन्ड्स और वेटलैंड की बहुत कमी हो गई है। इंडिया जैसे कंट्री में लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया है। पॉन्ड्स और वेटलैंड रहेगा ना अगर, तो क्या होगा कि वाटर रिचार्ज होते रहता है, अंडरग्राउंड वाटर अच्छा रहता है लेवल। तो पटना को ही देखो ना, पटना में पहले सैकड़ों पॉन्ड्स थे जो आपको कहीं दिखाई नहीं देता है पॉन्ड। तो पॉन्ड में पानी जमा हो जाता था पहले, रेन वाटर, और उससे रिचार्ज होता था अंडरग्राउंड।